ایک جو عرصہ دراز سے جھگڑا چل رہا ہے خالصہ سرکار کا اور عوامی زمینوں کا، اس جھگڑے کو ونس فار آل ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اور حکومت نے یہ ریونیو ٹرم بھی ختم کر دی خالصہ سرکار والی، اور ہمارے کسی قسم کتابت کے اندر خالصہ سرکار والی لفظ استعمال ہی نہیں ہوگا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر آنے والا دن فوڈ انسیکیورٹی کا دن آ رہا ہے، ہمارے پاس وسائل مسائل کی شارٹیج آ رہی ہے۔ حکومت نے زمینیں خالی تقسیم نہیں کرنی، حکومت نے ETI کے ذریعے اور باقی ایسے اداروں کے ذریعے آپ کو بھرپور وہ سارے مواقع مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ وہ زمینیں سیراب بھی کریں گے، ان زمینوں کو آباد بھی کریں گے اور زمینوں سے فائدے بھی اٹھائیں گے۔ گاؤں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں جو ریونیو اسٹاف ہے، تحصیلدار کی سربراہی۔ جب تک آپ کا بندہ شامل نہیں ہوگا تیسرا بھارت سے کوئی نہیں بھیجتا ہے۔ یہ ہماری آپس کی ہوتی ہے کہ میں موبل سے اگر میں شامل ہوں گا تو موبل کی زمین بیچی جائے گی ورنہ کوئی نہیں بیچے گا۔ یہ کہنے والی بات کرنے کا گواہ ہوں، ہمارے اندر کے لوگ شامل ہیں، ہمیں آپس سے بھی کام کرنا ہوگا، آپس میں بیٹھنا ہوگا اور نظر رکھنی ہوگی۔ آپ کی تجاویز کے بغیر CM صاحب کوئی بھی آج جو یہ DC صاحب نے اسٹور کے موذین ممبران اور نمبرداران کو یہاں طلب کر کے جو ایکٹ بن رہا ہے GB میں، اس کے لیے مشورہ کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اب آج تک ہمارے GB میں جو قانون چل رہا ہے، جو ریکارڈ ہے، وہ خالصہ سرکار پاکستان بننے سے پہلے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر ابھی ہماری حکومت اور صوبائی حکومت مل کے نیا ریکارڈ منتخب کرے جس میں سے عوامی رائے جو لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر میری ریکویسٹ یہ ہے، میں نے DC صاحب سے بھی ابھی یہ کہا، گاؤں کی کمیٹی کو ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ لینڈ مافیا جو ہے وہ گاؤں کے زمینوں کو پیٹ پیچھے اپنے نام انتقالات کرایا ہے۔ اگر اس قسم کے انتقالات ہیں تو DC صاحب اور کمیٹی مل کے اگر وہ جائز ہے تو ٹھیک، ناجائز ہو تو اس کو کینسل کر کے غریب عوام میں تقسیم کیا بالکل ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا شاید آج ہم سے کوئی مشورہ کیا لے لے، ہمیں کیا پتہ کہ اس ایکٹ میں کیا کیا ہے، مگر ابھی ہمیں یہ جو کاپی انہوں نے ایشو کیا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں یہ کاپی لے کر ہم اپنے عوام سے، کمیٹی کو ملا کر عوام سے مشورہ لے کر رائے انشاءاللہ ہم DC صاحب کو بھیج دیں گے جو بہتر ہوگا۔ ایسا ایکٹ جب پاکستان بنا تھا اس وقت آنا چاہا تھا، پانی سر سے گزرا، اب لوگوں کو ابھی ہوش آیا اور گورنمنٹ نے جو کچھ ظلم کرنا تھا غریبوں پر وہ ظلم ہو چکا۔ اب وہی علاقے ہیں، چند جو مخصوص جگہ ہیں جہاں پر زمینیں وافر مقدار میں ہیں، ادھر کم سے کم یہ ہاتھ کی صفائی کرنا نہ دے دے۔ باقی جو ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم چھڑیں گے تو شاید علاقے کے اندر امن امان کا بھی مسئلہ بنے گا اور حالات بگڑیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے اس پر چھڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں اس کے بعد جنگلات کا ہو یا زمین کا معاملات ہو، کمیٹی کے تھرو کام ہونا چاہیے۔ رینو جو ہے وہ تابعدار ہونا چاہیے کمیٹی کا، نہ کہ کمیٹی ان کا تابعدار نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ملک کے اندر نقصانات ہوا۔ نقصان کو آئندہ کے لیے اگر بچانا ہے تو اسی گاؤں کے کمیٹی جو ہے ان سے رائے لیے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں بننا چاہیے، تاکہ علاقے کے لیے امن بھی ہوگا، علاقے کے انصاف بھی ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اور پوری اسٹور قوم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں عزت دی، عزت بخشی۔ ہم نے جب بھی ہوش ہوا سنبھالا ہے ہم نے قوم کے بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ ہم نے ایک مرلہ زمین قافز ہو کر انتقال نہیں کرایا، بلکہ جنہوں نے انتقال کیا ان کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا ہوں، اور اب مزید بھی ہمارا زندگی رہی تو بولتے رہوں گا۔ ادھر جو باتیں رکھی گئی ہیں اور جس پر ڈسکس ہوا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ جو علاقہ ہے آلریڈی سیٹل ہے، یہ لینڈ ریفارمز کے بارے میں جو کچھ سوچا گیا ہے، اس سے پہلے میں بہتر سمجھتا کہ لینڈ ریفارم جس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے جو ڈاکومنٹری ہمارے سازہ ہے، ہمارا ریونیو کا جو ریکارڈ ہے
उसको दुरुस्त किया जाता। 1938 से पहले महाराजा के ज़माने का रिकॉर्ड बना हुआ है और अब तक वो इतना बोसीदा और दरीदा हो चुका है कि किसी की कोई मिल्कियत होने का वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है और रेवेन्यू वाले अंदाजे से लोगों को इसके कागजात दे देते हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारी जो जीबी की हुकूमत है, जीबी लेवल पर जो लैंड रिफॉर्म लाते हैं उससे पहले कि तमाम जीबीज़ के अंदर जो है हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए, उसके ऊपर फिर ये जो एक्ट के लिए जो एक्ट बना रहे हैं इसका इस्तेमाल किया जाए। वसलाम। ये है कि आज के लैंड रिफॉर्म जो एक्ट है उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अस्तोर के तमाम आबादीन की एक मीटिंग हमारे AC साहिबान और DC साहिबान की सरबराही में हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारा सेटअप है, जो लैंड रिन्यू एक्ट है, ये डोगरा राज का है। अभी उस वक़्त के मतलब कोई सरकार है या खालसा सरकार, उसको आज अवामी सतह पर अगर तकसीम करते हैं, हमारी ज़मीनों को हमारे लोगों तक के हुकूक देते हैं, उनके ऊपर इंतकाल करते हैं, डिक्लेयर होता है। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे जो है ना 2-3 और प्रोग्राम करें और भी हमारे साथी और भी जो अवाम नास है उनको मोटिवेट करेंगे और हमारे जो हुकूक हैं ये भी गज़ब नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। यहाँ पर जो है ना वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मदऊ किया है अमायदीन ज़िला अस्तोर को कि वो अपनी तजावीज़ दे दें। इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि इस एक्ट को जो है ना वो अगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर इसको करना है, लोगों के इन मसाइल को हल करने के लिए, रेवेन्यू के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने के लिए अगर इसको करना है तो इसको बहुत पहले होना चाहिए था। एक ज़्यादती जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ पहले हो गई कि जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल का जो कानून था, जो आज भी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में नाफिजुल अमल है, गिलगित बल्तिस्तान से उसको कानून को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ना हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो बहुत ही महदूद लैंड थी वो भी जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों ने जो ना ख़रीदा और वो अब कम से कम पड़ गई है। और फिर कुछ पे जो है ना माफियाज़ ने कब्ज़ा कर दिया, गैर मकामी लोगों ने ख़रीदा, जिसकी वजह से जो है ना अब लोग मसाइल से दो चार हैं। अगरचे देर से किया है लेकिन चलें, अब भी अगर किसी को ख्याल आया है तो उसको जो है ना वो खुश आइन करार दिया जाता है कि जी लोगों के मसाइल रेवेन्यू के हवाले से अगर हल किए जाएं तो। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में यहाँ मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, बाज़ इलाके सेटल्ड हैं और बाज़ अनसेटल्ड हैं। अस्तोर एक सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट है फ्राम बिगनिंग। यहाँ के मसाइल और किस्म के हैं, चिलास के और हैं, अस्करदू के और हैं, गिलगित के और किस्म के हैं। हम ये चाहते हैं कि क्या इस एक्ट के नाफिज होने से वो मसाइल हल हो जाएंगे जो लोगों को दरपेश हैं। अब तक जो ये खाका पेश किया गया है या एक मुसवदा सामने लाया गया है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जी एक अथॉरिटी के अंडर उसको लाने की कोशिश की जा रही है। फिर उस अथॉरिटी ने जिन ज़मीनों को तकसीम करना है वो फिर तकसीम करने की मजाज हो जाएगी, और कुछ ज़मीनें जो है ना लोगों के पास फालतू समझी जाती हैं वो उनसे उठा के तकसीम की जाएंगी। ये इस तरह का एक तसव्वुर मिल रहा है। पहले लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पेश आई, वो कौन से मसाइल थे जिनकी वजह से ये एक्ट लाया गया। अब वो मसाइल जो है इस एक्ट के नाफिजुल अमल होने के बाद जो है ना वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। जस्ट जो है ना वो एक इलाके के रकबे को एक अथॉरिटी के मातहत करने के लिए, जबकि वो चीज़ें ऑलरेडी अस्तोर के अंदर सेटल होने की वजह से वो उसका मातहत ही हैं, एक कलेक्टर के अंडर ही हैं वो सारी चीज़ें। एक नए एक्ट को फिर नाफिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को अगर जो ना रिफॉर्म्स करनी है तो इस वक्त एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फूड क्राइसिस हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए आपने जो ना एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना है, उसको आपने जो ना गंदम की पैदावार बढ़ानी है,
आपने जो ना वो उन जगहों तक जो ना जो पास्चर्स हैं जहाँ पर गंदम उगाई जा सकती है, जहाँ आलू उगाए जा सकते हैं, वहाँ पर जो ना वो चैनल्स ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ रोड्स ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ गंदम उगाने की ज़रूरत है। उसमें गवर्नमेंट क्या हमारे साथ मदद कर रही है? लोग उसके लिए सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं लोग कि मेरी पास्चर को आए कोई हुकूमत आकर जो है ना उस पर कब्ज़ा करके वो जो है ना तकसीम कर ले, उसके हक़ में हम कतन नहीं हैं। ये मेरे ख़यालात हैं। जैसे मोहतरम डीसी साहब ने कहा कि ये हम इस फोरम पे डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ फोरम्स करेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि इस पे हमारे जो लैंड एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट रूल को समझने वाले कानूनी और माशी माहिरीन को साथ हमारे जो विलेज कमेटी के नुमाइंदगान हैं, फिर गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनके साथ मुश्तरका एक वो जो कमेटी बना के इसको ओपन फोरम पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए, ताकि इसके अंदर जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसको भी उसको बिल को बाकायदा बिल बनाने से पहले इसको करना या नहीं करना, इस पे माहिरीन की राय के मुताबिक इसको किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। आज का जो इवेंट था बेहतरीन इवेंट था, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं, ठीक है ना, इसके लिए हमारे ज़्यादातर पढ़े लिखे कानूनी और माशी जो माहिरीन हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी दावत दी जाए। हमारे बड़े बड़े अस्टोर लेवल पे हमारे लोग हैं, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाए और फिर बैठ के इसको डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौंसल शंकरगढ़ से है, मैं एक्स मेंबर यूनियन कौंसल अब्दुल लतीफ़ मलिक। आज यहाँ डीसी साहब की तरफ से जो सेशन बुलाया गया, जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से एक्ट लाया गया है, इस एक्ट के हवाले से काफ़ी गुफ्त शुनिद हुई, जिसमें हमारी जो फॉर्म यहाँ पर मौजूद थी, अक्सरियत का यही कहना था कि सबसे पहले तो हमारी जो रिकॉर्ड है, रेन्यू रिकॉर्ड, उसको दुरुस्त किया जाए। जब तक रेन्यू रिकॉर्ड हमारी दुरुस्त नहीं होगी तब तक हम ये जो रिफॉर्म ला रहे हैं इसको कैसे सेटल करें। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सीएम साहब से, जीपी गवर्नमेंट से, कि पहले हमारी रिकॉर्ड को असली शक्ल में दुरुस्त किया जाए, उसके बाद दीगर जो चीज़ें हैं मालिकाना हुकूक देने के हवाले से उसको बाद में हम जो है ना अपने तजावीज़ दिए भी हैं और मज़ीद तजावीज़ भी देंगे। फ़िलहाल इस रिफॉर्म से पहले हमारी आवाम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हैं। सबसे पहले गंदम का इशू है, गंदम नहीं है इलाके में, हमारे लोग गंदम की वजह से काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त भी लोगों के पास खाने पीने के लिए रोटी मैसर नहीं। नालेजात में जहाँ तक रोड का मामलात हैं, हमारी यूनियन कौंसल शंकरगढ़ का रोड काफ़ी ख़राब है, गाड़ियाँ तो चलती हैं, लेकिन मैं खुद आज सुबह इस सेशन में शिरकत करने के लिए आया तो 6:15 बजे का निकला हूँ, 11:30 बजे मैं अस्टोर पहुँचा हूँ। रोड काफ़ी ख़राब है। गुजारिश ये है कि अस्टोर इंतज़ामिया से भी फौरी तौर पर इस रोड को भी साफ़ किया जाए। ये मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँ। फैसला आपकी गांव की कमेटी ही करेगी। गांव के जो जिम्मेदार होंगे वो 10 मेंबर हैं उस गांव के मोहल्ले के, उसके लंबादार हैं, सारे मिलकर वो करेंगे। हमारा रेवेन्यू का अमला सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेगा, आपकी आसानी के लिए।